लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प के रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। Yo, I'm back. चलो भाई यो हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर बीस्ट स्ट्रीम। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 1.5 घंटा है हमारे पास टू किल बिफोर वी गो टू द सीक्रेट चैनल। उससे पहले 30 मिनट लेट। अरे यार क्या बताऊँ, कॉल आ गया था। एनीवेज भाई मैच देखना है भाई, डिंगलीरन गेम 3 देखना है पहले तो मेरे को कि गेम 3 में हुआ क्या हुआ, कैसे जीता गुकेश वर्सेस डिंग। एगैड में टर्क वीडियो देखते हैं। एगैड में तो और टिक्कू यार आदत है मेरे को एगैड में टर्क देखने का भाई। And welcome back to Game 3 of the World Chess Championship match between Gukesh Damaraju of India and Ding Liren of China. Hello everyone. Nice Game replied starts with pawn to d5. Here, Ding goes for D5 knight से to खेला। f6 instead. हमको लगा था E5 से शुरू करेगा। And okay, let's see what Gukesh has in mind. D5 Knight पे सॉरी D4 पे D5 क्यों नहीं खेला उसने? D4 to D5 f3, we have pawn to d5, Okay, already pawn कर to लिया। c4, Okay. and e6. The most classic opening there is, Queen's the Queen's Gambit Gambit declined. declined. Let's see, do they go into some well-known theory, or has someone prepared something
out of the right out of the opening. And it's hard to say if Gukesh's plan is okay. टाइम Let's पे जीता देखने दो ना भाई, तुम पहले disregard क्या बता e4 दे रहे altogether. हो, देखने Let's तो now दो. focus on d4, or maybe he just wants to check what the Ding has prepared when he tries d4, and then decide whether he will try to equalize मैं the ना match कहीं using e4 थोड़ा सा or छोटा हो d4. जा So रहा it हूँ, could be, बैडमिंटन you की know, I'm बॉल तो pretty sure दिखे. they went through all of this quite extensively, and you know, they figured something out. But okay, let's see how the Queen's Gambit decline will be treated after so many years. We have c captures on d5, going for the exchange variation. E captures knight to c3 and pawn to c6. We have queen to c2 and pawn to g6. The queen being on c2 is a very normal square for the queen. E4 is क्या क्या being खेलेगा prepared. बिशप? So g6 makes sense. The bishop can come to g7, and also you will have support for bishop to f5 to kick away the queen. And usually bishop to g5 is played here. It's almost exclusively played. But here we have pawn to h3, and there are only a handful of games in the database, most notable one being क्यों h3? between Vladimir Kramnik and Yanni Pomnishi, but we're going to get to that. We have bishop to f5, queen to b3, and now queen to b6, defending the b7 pawn by attacking the white queen, and now pawn to g4. In that game that we mentioned, pawn to g4 was also played. The only difference is that after pawn to g4 in the game Nepo versus Kramnik, it was actually Kramnik versus Nepo. Nepo had the black pieces. Nepo played queen captures on b3, and he defeated Kramnik. But here, no, sorry, rather bishop to e6 was played. The trade was avoided. But here queen captures on b3 is played, and it is now, as of move 9, that we have a completely new game. So queen captures on b3, new move. We have a captures on b3 and bishop to c2. Okay, it's not much, but if you can, you know, snatch the b3 pawn, could go a long way. Bishop to f4. Asking, are you maybe interested in the b3 pawn? Well, not right away. Pawn to h5 first by Ding, and we're gonna discuss why not. We have rook to g1, h captures on g4, h captures on g4, and now just knight b to d7, continuing development. The problem with capturing on b3 is that you trap your own bishop. The knight can easily go after it, and now if you go bishop to c2, rook c1 just traps the bishop, complements of the pawn on g4, and if you don't, let's say you go bishop to c4, then you can just you know, eliminate the beautiful bishop, play pawn to e3, and now you will collect on c4. And as you know, if you've ever tried playing the Queen's Gambit declined, or if you played against it, no doubt you've fallen for this trap like a million times. If pawn to b5 here, trying to save the c4 pawn, you never try to save the c4 pawn. Just knight captures on b5, and after c captures, the bishop comes to collect. So that's, you know, game over. So after h captures on g4, we have knight b to d7, and now knight to d2. Okay, the b3 pawn is defended, and now we are preparing pawn to c1. And today's game was rich in tactics. The Ding burning a lot of time on this. So what can he play? He goes rook to g8, which is by far the best move recommended by the engine, and Gukesh just goes pawn to g5, not allowing Ding to strike with pawn to g5 himself. So pawn to g5 and knight to h5, going after the bishop on f4. We have bishop back to h2, and only now rook back to h8. So if the knight moves, there could be some problems towards that bishop on h2. The problem is, where is the knight gonna go? I mean, you can't really go anywhere along this diagonal, and if you go back, well, then the bishop has all the time in the world to just move. We have pawn to f3. Gukesh prepares, pawn to e4. We have knight to g7 attacking the bishop on h2, and Gukesh just moves the bishop to g3. And here, it's not a bad position for Ding. What's bad for Ding is that he only has 30 minutes on the clock, and that he probably never analyzed this position. Gukesh, on the other hand, knows, well, maybe not the exact position, but definitely the ins and outs. And here you should go bishop to e7, or just go back right away. Bishop to f5, and forget about, you know, you ever going to c2. मैं होता भाई नॉर्मली बिशप को वापस पीछे ले लेता भाई. Bishop to
f5. In the game, Ding played rook to h5, and this is where things get really interesting. Now, bishop to a7, it's easy to make such a statement when analyzing the game afterwards, with an engine, because it's so complicated. I mean, I have to show it. Bishop to e7, okay, Gukesh will strike with e4. This not only grabs the full center, but also prevents the bishop from going back. And now, what the Ding would have to do is play knight to e6, allow rook to c1 to trap the bishop, and now just play d captures on e4. And now look at this. Rook captures on c2 isn't all that impressive, because after knight captures on d4, you attack the rook, and now you can't really go back. If you go back, then something like e3 chases away the knight, and after the knight moves, now you just capture with check, and you can't even play king f2 due to the pawn, and you're gonna lose the rook on g1. But okay, it's not forced. Here, after, for example, this d captures on e4 move, you can go d5, and only after c captures and rook captures, now you go knight to d4, and you play king to d1. And okay, Ding is probably a little bit better, but it's definitely playable. Knight captures rook, king captures rook to c8, and the game continues with Ding, having a more powerful position, but being down a piece. Not really a piece. You can see that it's two rooks, bishop, and knight versus a rook, two bishops, and two knights. So fairly equal, but probably a little bit easier to play for Ding. But okay, after bishop to g3, rook to h5 was played by Ding, and this is now very, very different. Now Gukesh again strikes with pawn to e4, preparing rook to c1 to trap the bishop, and Ding plays d captures on e4. He should have played knight to e6, like in the line that we've discussed. Here it would be somewhat different due to the change of the moves of rook h5 for bishop to e7, but still after rook to c1 and knight captures on d4, you will play bishop to f2. Attack the knight, force away the defender of the bishop on c2, and only after something like bishop to c5, bishop captures, removing the defender of the bishop, but it comes with an attack on the rook on g1. You will move the rook, and then bishop captures on c3, b captures, and bishop captures on b3. At least you will grab a pawn, knight captures, d captures, for example, captures, and yes, Gukesh would be up a bishop, but Ding would be up two pawns, and now if those pawns start marching forward, could be very interesting. But still, we have to prefer white due to the extra piece. So it's incredibly complicated, especially for 27 minutes on the clock. This is extremely unpleasant. So Ding played d captures on e4, f captures on e4, and now knight to e6, and now Gukesh goes rook to c1. We have knight captures on d4, similar like all of the lines that we've discussed, bishop to f2, and now Ding goes for bishop to g7. Probably bishop to c5 was a little bit better, but after bishop to g7, there is only one move that gives advantage to Gukesh, and no doubt you guys can see what it is. Just in case you haven't seen the game, pause the video and try to find it. You will feel awesome. Knight e2, knight captures, bishop captures, rook पे attack plus bishop पे attack. चलो फटाफट से खेलो. So, for those of you who were able to do it, congratulations on always thinking about the knight moving back. And for those of you who just want to enjoy the show, it is knight to e2. Look at this beautiful, beautiful steed on e2. Now, the knight is attacked, the bishop is attacked if the knight moves, and also, even if you capture, then bishop captures. The bishop is attacked, and also now the rook on h5 is attacked. And if instead, after knight to e2, bishop captures and b3 is played, it doesn't matter. All of the trades are in your favor. Just bishop captures on d4, bishop captures, knight captures. Again, the bishop is hanging. Well, you can move it, but just we're going to trade, and always Gukesh will be up a piece. And here it's not even that Ding can use it like in the other lines. Here is just a much worse position. So instead, after knight to e2, we have knight captures on b3. You have to try something. Rook captures on c2, and knight captures on d2. King captures on d2, and now knight to e5. And we have this position where, again, similar to some of the lines that we've discussed, Ding up two pawns. He's down a light square bishop, basically. But it's much, much easier for Gukesh to go after the black king, and also just to control the board. If Ding can get those pawns up the board or down the board, could be very good for him, but it's not going to be easy. Knight to d4, we have rook to d8, nicely aligning the rook with the king, king to e2, and now rook to h2. Okay,
not a terrible position for Ding, but still very, very difficult to play. Bishop to g2, and now, or you could even go knight f3. That's also very nice. After rook to h2, for example, knight f3, knight captures on f3, king captures, and you trade down a little bit. You're up a bishop and just have a very, very nice game, something like a5. But still, even though white is better, you always have to be careful. Ding's biggest problem in this game now is his time. He's down to 13 minutes on the clock, and he needs to make 13 more moves. That sounds like a lot. You have a full minute for a move, but, it's not. Bishop to g2, we have pawn to a6, and now pawn to b3. It's a very classy move by Gukesh. He's saying, I'm not gonna, waste 15 minutes here. While I figure out the most precise way to beat you, because pretty much anything I play is winning, and it's better that if you burn time. So rook to d7, we have rook c back to c1 and king to e7. Rook c to d1 and king to e8. Ding trying to reach that time control. He still needs to make 9 more moves. Bishop to g3, attacking the knight and the rook to h5. And now look at this. Knight to f3. Offers a trade of knights. Ding goes for it. It's an easy capture, that burns more time. King captures on f3, and now bishop to d4, attacking the rook on g1 and making life, very difficult for himself. It's not that it's a terrible move or anything, it's just that there are no good moves. We have rook to h1 offering a rook trade, and now, maybe last chance at surviving was rook captures on h1, but that's wishful thinking. That's like if Gukesh makes some sort of a terrible blunder that, blunders a full piece, which is not happening. So here, Ding played rook captures on g5, and it seems like, okay, he just won another pawn, so now he's up 3 pawns, so maybe he can actually compensate for being down a piece, but it's dead lost. Not only that, Ding has 9 seconds on the clock, and he still needs to make 5 more moves, even if that was possible, which, it humanly is, but they still have to be good moves. He's objectively lost here. Feel free to pause the video and win the game for Gukesh while I give you a couple of seconds. The move in question is none other than bishop to h3. This is what Gukesh played, and okay, Ding had a couple of seconds, of course, he missed that move, but even if he didn't miss it, there weren't any better alternatives. And the reason why this is so powerful, and this is just amazing, is that if you move look at where is the rook going? The pawn covers d5, the bishop covers d6, so you can't really go to c7 because the rook also has to defend the bishop on d4, and if you go to d8 or e7, okay, we're not even going to discuss e7 because you have to keep an eye on the bishop, but if you go to d8, then bishop to h4. Look at this. Attacks the rook and the rook, and it's not just that you're going to lose the exchange, also you're going to lose that bishop here. Bishop captures, king captures, rook captures, and d4 check. Now we're going to be down a bishop and the rook, and of course that's just silly to even discuss. So after bishop to h3, Ding blitzed out pawn to f5. Not even blitzed out, he spent 4 seconds on the move. Bishop to f4. Gukesh playing the most precise way. Here, Ding played rook to h5, but also upon playing this, he lost on time. So he was in this position on move 37 that Ding Liren lost on position, on time, and he was just completely obliterated after going into a position that was so complicated that even the great Ding Liren couldn't, navigate safely. And even if he didn't resign, there's a beautiful win here. Even if he didn't lose on time. I'm sure you guys see it, but just in case you don't, it's bishop captures on f5. Making it impossible for black to continue because, bishop captures here will just win a full rook. Also, the rook is hanging, and also if you just capture on h1, first we're going to capture this rook with check, and after king captures, then you capture this one. Now you're just down a full rook, and of course, completely winning. Nice. So very, very different, turn of events as from what we were, expecting. Probably a lot of you were just thinking, बढ़िया गेम था, बढ़िया ही था भाई गुकेश, पूरा स्टार्ट लेके एंड तक प्रेशर ही प्रेशर.
पहले का मजा आया, मजेदार। चलो भाई, अब देखा जाए थोड़ा सा न्यूज वाइज से देखते हैं आज। सो हे गाइस, न्यूज़ So hey guys, तो सब news लोग guys, बात shut कर up लेते हैं the एक better रीलर है। का रील शूट गॉन रॉन्ग के बारे में। होता क्या है, हरियाणा पानीपत में एक बंदा पब्लिक प्लेस पे जाके ऑब्ससीन वीडियो शूट करने लग जाता है। उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था वो आप देख ही सकते होंगे स्क्रीनशॉट। बड़ा पहना उसके है। बाद होना क्या, वहाँ के जो पब्लिक है वो उसको पीटने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एक दो। अगर तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है माया गोगोई के बारे में। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह डालती माया है। ये गोगोई आसाम से है लेकिन बेंगलुरु में ये पिछले 3 साल से रह रही थी। होता क्या है, 23 नवंबर को ये अर्नव हरनोई नाम के बंदे के साथ एक होटल में चेक इन करती है, पर 26 नवंबर को सिर्फ अर्नव होटल से बाहर निकल के चला जाता है। इसके बाद जब रूम से स्मेल आने लग गया, होटल वालों ने फिर पुलिस को कॉल किया तो पता चलता है कि माया गोगोई का डेथ हो चुका है। एलिजेंटली अर्नव ने माया को मल्टीपल टाइम स्टैब किया चाकू से, जिस वजह से उनका डेथ हो गया। पुलिस के अकॉर्डिंग जो अर्नव है वो केरला का रहने वाला है। पुलिस अभी उसको ढूंढ रही है ना। अभी तक पुलिस ने जितना इन्वेस्टिगेट किया उनके अकॉर्डिंग जो अर्नव है वो माया को मारने के बाद एक दिन तक माया के डेड बॉडी के साथ ही रहा। वो नेक्स्ट डे होटल से भाग गया। मतलब 25 मॉर्निंग को उसने मारा एंड देन फिर 26 मॉर्निंग को वो भाग गया। पुलिस यही बताया कि वो दोनों के अलावा रूम पे कोई नहीं गया 3 दिन तक। इसका मतलब मारा किसने, अर्नव नहीं है। अभी पुलिस उसको ढूंढ रही है, बहुत जल्द उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट। भाई क्या ये, क्या था ये? के बारे में बात कर चुके, एक मूवी जैसे न्यूज के बारे में। होता क्या है, कार से एक पैसा बंदा आता गोविंद है का पेट्रोल भरा था। भराने पेट्रोल पंप, एंड जब उसके कार में पेट्रोल डल रहा होता है वो निकलता भी है एंड क्यूआर कोड जो रहता है उसको स्कैन करता है एंड ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो पे करेगा एंड वो कार में चढ़ जाता है। बट जैसे वो कार में चढ़ा वो कार लेके भाग जाता है। इसके बाद होता क्या है, ठीक उसके पीछे पुलिस का गाड़ी था। पुलिस जैसे वो देखते हैं, पुलिस उसका पीछा करने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स शायद से वो पकड़ा गया होगा। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शायद से वो पे करता, लेकिन उसकी गाड़ी में कुछ इलीगल चीजें हैं एंड वो पुलिस को देखकर डर के भाग गया हो। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर से बता। भाई साहब, अबे यार प्लेट कूल ना भाई, ऐसे भागेगा तो भागेगा तो पक्का ही पकड़ेगी ना। वो पुलिस भी तो पेट्रोल भरवाने आई है, पेट्रोल भरवा के भागती ना तेरे पीछे। और अगर नहीं भागती पेट्रोल भरवा के तो उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है रास्ते में। तेरे में तो अभी जस्ट पेट्रोल भरा ना, क्या लोड़ू आदमी है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, बियर बाइसेप्स के कंट्रोवर्सी के बारे में। कुछ दिन पहले बियर बाइसेप्स के चैनल पर एक पॉडकास्ट आउट हुआ था जिसमें गेस्ट आई थी मालविका बिनी। कौन इस है ये? पॉडकास्ट में वो बोलते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की वजह से इंडिया में मंदिर बनने लगे हैं, पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे। वो क्या कही थी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। We are talking about a time when temples had not emerged, particularly in South India, because we kind of assume timelessness to temples. But temple building, even in the north, started only with the Gupta dynasty. Before that, if you look at religion, you had the Vedic religion, you had the yagas and the yagnas, and they did not require a temple. Got it. And even at that point of time, you had the idea of a formless spirit being worshipped as God. And deities, even though they were personified, they were you did not have idols or iconography. It's with the emergence of the Gupta dynasty that we see structural temples evolving. जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इसी वीडियो को उन्होंने अपने YouTube शॉर्ट्स चैनल पर भी डाला था। और उनका जो Instagram अकाउंट है जहाँ पे वो पॉडकास्ट के क्लिप्स डालते हैं, वहाँ पे भी वो डाले थे। तो होता क्या है, कुछ दिन पहले सनातना ट्रैवलर करके एक यूट्यूबर है जो अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वो बताते हैं कि जो मालविका बिनी अपने वीडियो में बताई वो फेक है एंड बियर बाइसेप्स उसको प्राउडली शेयर भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वो अपने वीडियो में पूरा हिस्ट्री एक्सप्लेन किया ना कि गुप्ता डायनेस्टी की वजह से मंदिर बनना चालू नहीं हुआ है, बहुत पहले से बनते आ रहे हैं। वो बहुत सारे मंदिर दिखाए भी जो बहुत पुराने हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो होता क्या है, अभी एक और यूट्यूबर स्ट्रिंग रिवील्स बियर बाइसेप्स की उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, डियर नरेंद्र मोदी जी, आपने इसको नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया है। देखो एक ऐसे डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म्स। मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ये जानबूझ के हाफ बेक्ड हिंदू इडियट्स को बुलाते हैं पॉडकास्ट पर, सो दैट हिंदूज गेट अट्रैक्टेड एंड हेंस कैन बी कन्वर्टेड और डिस्ट्रॉयड और एनस्लेव्ड थ्रू अदर बिलीफ सिस्टम्स। व्हाट ए माइंडलेस एमएफ बियर बाइसेप्स। तुम बैठ के सुन रहे हो जो वो कह रही है कि गुप्ता डायनेस्टी की वजह से ही मंदिर बनने लगे हैं। माय हम्बल प्रेयर टू बैन सच शोज। तो उसी का बियर बाइसेप्स रिप्लाई करते हैं, तो तुमको क्या लगा रणबीर रावत को हट कुछ पता है? वो आता ही इसलिए कि ऐसे वो क्यों करता है, वो ऐसे रिलीजन पे बात, या फिर क्यों करता है वो स्पिरिचुअलिटी की बात? क्योंकि आजकल ये कूल है, दिस इज द हिप, ठीक है? तो वो सब पे ज्यादा व्यूज आते हैं बस, और कोई मतलब नहीं भाई।
सकते हैं। ब्रदर मैं आपका पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ, बट मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि आप पूरा एपिसोड देखें, ना कि आधा क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने हेल्दी डिबेट किया अबाउट दिस टॉपिक्स। मैं भी सनातनी हूँ जैसे आप हो, बट आई मेक इट अ पॉइंट टू और रिस्पेक्ट। आई लव हाउ दे आर लाइक कि आप पूरा एपिसोड देखें, क्लिप नहीं, जबकि क्लिप भी इसी का है, इसने ही बनाया वो क्लिप। क्लिप में पूरी इन्फॉर्मेशन ही मिल पाती है। अलग बात है, मैंने ही इस तरह से काटा है उसको सेंसिलाइज करने के लिए, ठीक है, बट पता नहीं कैसे कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है पूरी वीडियो देखे। everyone who visits my space। आपको मैं उतने ही रिस्पेक्ट से होस्ट करूंगा अगर आप मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करते हो मेरे पॉडकास्ट में आने का। While I don't agree with all your views and sentiments, I deeply admire your ferocity with content creation. Can't go about creating your funnest content without being blessed from above. You are welcome to Mumbai and to the Ranveer show. Look forward bro। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे उनको भी इन्वाइट किए कि वो भी पॉडकास्ट में आए एंड उनका जो नॉलेज है वो शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, राज ग्रोवर के बारे में। प्रीमियर लीग अभी चल रहा है, आपको पता होगा, and राज ग्रोवर जो है वो बहुत बड़े फैन है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के। उनका एक वीडियो भी आउट हुआ है मैनचेस्टर सिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। यस, मैनचेस्टर सिटी ने खुद उस वीडियो को शेयर किया। इसके बाद काफी सारे लोग मैनचेस्टर सिटी के वो रील के नीचे कमेंट करने लगे कि इसको फुटबॉल का कुछ नहीं पता, ये बस सीजनल फैंस है, ये सब बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए। जिसके ऊपर राज ग्रोवर रिएक्ट करते हुए लिखे, डैम, कांट पीपल जस्ट बी प्राउड टू सी एन इंडियन हियर रेदर देन क्राइंग इन द कमेंट सेक्शन? मीन ऑफ कोर्स यू कैन बी अ फैन ऑफ अनदर क्लब व्हिच इज नॉट डूइंग दैट वेल ऑन द फील्ड राइट नाउ, बट किसी को हेट करना क्योंकि वो किसी एक क्लब को पसंद करता है इज लिटरली द मोस्ट सेंसलेस थिंग यू कुड डू। क्या सोचते हो आप इस? This is the most senseless thing you could do. By this is what football is. They love their club and they hate every other. That's why ये जो इतने भी प्रीमियर लीग वाले मैचेस होते हैं इतने व्यूड होते हैं, इतने उसकी अटेंडेंस होती है, इतना वो लोग देखते हैं, इतना फॉलो करते हैं, पैशनेटली वो लोग फॉलो करते हैं भाई। आई दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। जबरदस्ती अब वो क्या तू भी हेट करता है भाई? ऐसा थोड़ी तू कौन सा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट लिवरपूल भी बहुत अच्छा है, तो यू आल्सो हेट, यू हैव टू हेट सम अदर जो भी है। इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। ऑल्सो फुटबॉल जैसे ही स्टोरी डाला उससे ही समझ आया कि सीजनल फैन लग रहा है, अब तो सीजनल ही फैन भाई। नहीं तो मतलब मैं तो फैन भी नहीं हूँ फुटबॉल का, फिर भी मेरे को पता है ऐसा ये सब। भाई चैंट नहीं सुने क्या इसने? What do we call Tottenham? Shit! What do we call shit? Tottenham! ऐसे करके कुछ तो है ना। स्लोगन बना के रखे है सारा। फुटबॉल का बात हो तो बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी कौन से फुटबॉल क्लब में, आपको पता होगा, अल नसार। तो कल था अल नसार वर्सेस अल घराफा का मैच एंड वो मैच अल नसार जीत जाते हैं बाय 3-1। वो मैच जीतने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ट्वीट करते हैं जहां पे वो कुछ फोटो शेयर करते हैं, लिखते हैं बिग विन टुनाइट। तो उसी के नीचे इलॉन मस्क रिप्लाई करते हैं कांग्रेट्स। तो उसका फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिप्लाई करते हैं ग्लैड योर आईज हैव टाइम फॉर गुड सॉकर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपना न्यू वीडियो कब ला रहे भाई? बहुत सारे उनके फैंस को उसी का वेट है। वेल आज वो एक अपडेट दिए उसी से रिलेटेड जहाँ पे वो बताए कि आज तक मैंने आशीष चंचलानी की एक वीडियो नहीं देखी, आज तक एक वीडियो, अपनी पूरी जिंदगी में एक वीडियो नहीं देखी आशीष चंचलानी की, ठीक है, बट उसके बारे में न्यूज इतना सुन लिया है ना कि अभी ये आने वाली है, आने वाली है। अब इसका अब देखूंगा मैं, इस भोसड़ी वाला का वीडियो देखूंगा ही मैं, कि देख ही लेते हैं जो क्या ये बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, ऐसा कौन सा मैग्नस ओपस बाहुबली बना के रखते रहा है, ये देखना ही पड़ेगा। अरे यार लैग करने क्यों लगा? नेटवर्क, मेरा नेटवर्क। Shit, 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 shit. Are we back? Are we back? Hello, hello, mic testing. लैग देख के क्या ही कर सकते हैं भाई, हम कुछ कर नहीं सकते लैग का। अब तो इंटरनेट डाउन है, क्या अंबानी को कॉल करूं क्या मैं? अब जब सही होगा तभी सही होगा, जब तक सही नहीं होता तब तक चेस खेल लेता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। वेट
Are we back? I don't know that. वाह व्हाट अ मूव भाई. पॉन स्ट्रक्चर तो सही कर लिया भाई ने अपना. एक पीस दे के हाँ, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. पॉन स्ट्रक्चर ही तो इम्पोर्टेंट था. बैक. ओह शिट, अभी गड़बड़ कर देता मैं. ओह शिट. अरे इधर से तब से मेट है भाई. आर वी बैक? क्या हम वापस आ चुके हैं? उनका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक मूवी होने वाला है जो कि YouTube पर ही आएगा. इतना डिले क्यों हो रहा है इसके बारे में भी वो बताए. वो क्या कहे आप देखिए. तो मारो गाली यार, वीडियो के लिए मारो. जितनी गाली मारोगे मुझे उतना मजा आ रहा है, क्योंकि काम तो चल रहा है, रोज चल रहा है. इनफैक्ट अभी और शूटिंग करने वाले हम लोग. मारो मारो मारो. आई लव यू गाइस. ये जो वेट है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ वर्थ इट रहेगा. एंड ऑब्वियसली काफी लंबा वेट हो गया है. हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने आज तक इसकी एक भी वीडियो नहीं देखी एकदम ही, पर ये वाला वीडियो देखूंगा मैं. इसका क्या ही बनाने वाला है भाई ये. तो पूछते रहते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है. एक बार आप देखोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि हाँ, ये चीज को अगर टाइम नहीं लगेगा तो किसको टाइम लगेगा. वेरी एक्साइटेड. सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जितने भी को एक्टर्स है इस प्रोजेक्ट में भाई, सबने जान लगा दी है. एंड बढ़िया है वो लोग यार. एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इतना वक्त लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करने के लिए लिया गया है. मेरे जो होली के पहले हुआ था वीडियो के साथ, मैं वो कभी नहीं भूलता हूँ. वो इंसिडेंट ने मेरे को इतना, अगर आप तुम लोग 2023 में जाके देखोगे ना, वो बिग बॉस के वीडियो के नीचे मैंने कमेंट भी किया था क्योंकि अब मेरे से गलती हुई है. अब छाछ क्या, मैं तो चिल्ड ग्लेशियर भी फूक फूक के पीऊंगा. सपना है मेरा यार ये. मैं अपना सपना पूरा करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट से. एक बार, सिर्फ एक बार ये जो कहानी मैंने लिखी है इसको एक मौका दो. क्योंकि ये जो कहानी हमने लिखी है, हमने ही लिखी है. जिन्होंने वो वीडियोस बनाया जो आपको पसंद आते हैं, नहीं अच्छा लगा देखो, वो तो किसी के हाथ में नहीं है. हो सकता है, मैं तो बोलता हूँ आज मैं ये मुंह खुला बोलता, हो सकता है ना भी चले. सक्सेस और फेलियर वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत वो मेरे हाथ में. और हाँ, इतना वक्त इसीलिए लग गया क्योंकि हमने मूवी बनाई है. बोल दिया मैंने लोग, इसलिए तो इतना वक्त लग रहा है. पिक्चर ही बनाई हम लोगों ने. उनके इन्हीं इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर एक जन रिप्लाई करता है, बीसी अगर ये वेट वर्थ नहीं रहा, माँ कसम तेरे घर पे आके तुझे मारूंगा. उसी को शेयर करते हुए आशीष चंचलानी लिखते हैं चलो डील. ऑल्सो वो एक पिक्चर भी शेयर किया शायद से उसी वीडियो के शूट के दौरान का है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, मैक्सटन के बारे में. तो मैक्सटन ने एक इंस्टाग्राम यूजर को लीगल ये जब वॉइस ओवर करता है तभी सही था. सिंचे टॉयलेट वाला है, ऐसा भी था क्या? चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, मैक्सटन के बारे में. तो मैक्सटन ने एक इंस्टाग्राम यूजर को लीगल नोटिस भेज दिया है. यस, वो इंस्टाग्राम यूजर के 80,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है. अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? बेसिकली वो इंस्टाग्राम यूजर क्या करता था, लोगों को कहता था कि मैं मैक्सटन का दोस्त हूँ, जॉनथन गेमिंग का दोस्त हूँ, स्काउट का दोस्त हूँ, एंड वो उनका नाम यूज करके BGMI का जो यूसी रहता है उसको सेल करता था. एंड उस बंदे ने मैक्सटन को ब्लॉक भी कर रखा है. वेल, मैक्सटन ने उनको 7 दिन का टाइम दिया ये सब रोक दे करके, नहीं तो फिर वो केस कर देंगे. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, क्रेजी भाई. ये सलमान खान के बारे में. तो सलमान खान का आपने ये वाला वीडियो देखा होगा जो कि बहुत पुराना है, 1998 का है. सलमान खान पुलिस स्टेशन में वही काला हिरन के केस को लेकर. एंड जिस तरीके से आप देख सकते हो बैठे हुए, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देख हाथ में सुट्टा भी है ना उसके, सुट्टा का डब्बा. कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे बोल रहे थे कि वो बहुत ही एरोगेंट था. अभी भी रील्स वगैरह में भी कई सारे लोग उनको एरोगेंट बोलते हैं. तो उसी के ऊपर रिसेंटली सलमान खान बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड में रिएक्ट कर रहे हैं. यस, रजत दलाल कुछ तो बोल रहे होते कि उनका आदत है पैर को ऊपर रख के बैठने का. तो उसी
टाइम सलमान खान उसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, अगर आपने मेरी पुरानी क्लिप देखी है तो ऐसा लग सकता है कि सलमान खान को देखो वो कितने घमंड से पुलिस स्टेशन में बैठा है, लेकिन मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं तो मैं वहां जाकर क्यों डरूं। फिर वो कहते हैं कि अब जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो उनको भी एम्बरेस फील होता है। वो कहते हैं जब अधिकारी या सीनियर ऑफिशियल आता है तो आप खड़े होकर उनके बैज और उनकी वर्दी का सम्मान करते हैं। आज जब मैं उन पुरानी क्लिपों को देखता हूँ तो मुझे खुद उसके बारे में अच्छा नहीं लगता है। मैं बचपन में वो हरकत कर गया। मेरे चलने का एक तरीका है, एक बॉडी लैंग्वेज है जिसे मैं अब बदल नहीं सकता, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये ईगो है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन के बारे में। बहुत टाइम से ये दोनों का डिवोर्स र्यूमर चल रहा है, आपको पता होगा। तो यही डिवोर्स र्यूमर्स के चलते बीच अभिषेक बच्चन रिसेंट एक इवेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कहते हैं, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, मूवीज बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐश्वर्या घर पे है मेरी बेटी आराध्या का ख्याल रखने के लिए। आई थैंक हर इमेंसली फॉर दैट। तो जो र्यूमर्स चल रहे थे, भाई मेरे को तो लगता है कि अभिषेक बच्चन को घर पे बैठना चाहिए आराध्या का ध्यान रखने के लिए, और ऐश्वर्या राय को बाहर भेजो मूवीज बनाने के लिए भाई, ठीक है। फालतू का, इसको बैठाओ घर पे। इतने टाइम से वो तो अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट। सलमान खान बिजी इन वाचिंग रील्स। हाँ भाई आजकल रील ज्यादा देख रहा है भाई, मेरे को लग रहा है इसको चस्का लग गया है। किसी ने बोला होगा कि क्या करते रहता है तुम, कोई इनकी गर्लफ्रेंड बनी होगी नहीं 25 साल की, तो कहते हैं अरे दिस आर कॉल्ड इंस्टाग्राम रील्स, आपने देखा नहीं कभी, देखो ना आपके भी कितने सारे आते रहते हैं। और फिर उसने वो हुक हो गया होगा ऐसे करने का, तो आजकल रात भर यही करता रहता है। ओ के बारे में बात कर चुके हैं, चाइना के एक आदमी के बारे में जो कि एक कंपनी में पिछले 20 साल से काम कर रहे थे एंड वो एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय थे। बट होता क्या है, रिसेंटली काम करते वक्त वो थोड़े टाइम के लिए डेस्क पर ही सो जाते हैं, जिस वजह से उनको जॉब से ही निकाल दिया गया बाद में। मतलब समझ रहे हो, 20 साल से जो एक कंपनी का लॉयल एम्प्लॉय है वो थोड़े टाइम के लिए डेस्क पर सो गया एंड उसको निकाल दिया गया जॉब से। इसके बाद उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि वो जो एम्प्लॉय है उनको 40 लाख रुपए दिया जाए कॉम्पेंसेशन। इतना ही नहीं, आज मेरे पास एक और एम्प्लॉय का न्यूज है जो कि न्यूयॉर्क से। वो जो बहुत ही सही है भाई, करना ही पड़ेगा भाई, सो नहीं सकता आदमी। मैं तो भाई जाकर रूम में सो जाता था भाई, सिक रूम में जाता सो जाता। जा रहा हूँ, नींद आ रहा है। मतलब क्या हुआ, सब ठीक ना, सब ठीक, बस नींद आ रहा है। ये उनका हाइट है 6 फुट 2 इंच एंड वेट है उनका 163 किलो। एंड वो जहाँ काम करते थे ना, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ का जो डेस्क था वो उनके लिए छोटा पड़ गया, क्योंकि भाई वो एक तो लंबे है एंड उनका वेट बहुत ज्यादा है। एंड उस वजह से वो एम्प्लॉय ने उनके कंपनी को ही सू कर दिया। वो एक्यूजेशन लगाए ऑफ हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। इतना ही नहीं, वो $4.6 मिलियन का डिमांड भी कर रहे कंपनी से, जो कि इंडियन रुपीज में कितना होता है, 38 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बहन के लोड़े डिस्क्रिमिनेशन। इनके लिए अब बड़ा सीट दो इनको। के बारे में बात कर चुके हैं, पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार ने दीपक कलाल से 30,000 रुपए लिए एंड उनको दिए नहीं? कुछ दिन पहले पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता होगा, जहाँ पे प्रदीप ढाका एंड राजवीर सिंह उनको बहुत ज्यादा पीटते हैं। क्यों? उनका कहना था कि पुनीत सुपरस्टार ने उनसे किसी चीज का प्रमोशन के लिए पैसे लिए एंड बाद में उन्होंने ना ही प्रमोट किया एंड ना ही वो पैसे दिए, जिस वजह से राजवीर सिंह एंड प्रदीप ढाका उनको बहुत ज्यादा पीटते हैं। तो उसी वीडियो को शेयर करते हुए दीपक कलाल लिखते हैं, मेरे भी 30,000 खा गया ये, मैंने ब्लॉक किया इसे, झूठे वीडियो बनाता है दान धर्म के। पूरा वीडियो देखो, सबके साथ यही किया इसने। और जो पुनीत सुपरस्टार का रिसेंटली एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे एक जन उनको जबरदस्ती गोबर खिलवा रहे थे ना, वो पुनीत को बता रहे थे कि तुम देश के यूथ को बिगाड़ रहे हो, गलत चीजें सिखा रहे हो। तो भी होता क्या है, थारा भाई जोगिंदर आ जाते हैं सपोर्ट में पुनीत सुपरस्टार के, जिसका रिप्लाई फिर प्रदीप ढाका जोगिंदर को दिए। पहले मैं आपको जोगिंदर का दिखा देता हूँ, आप देखिए। पूरा हिंदुस्तान पुनीत सुपरस्टार को पीटने के लिए ढूंढ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उसके सामने सिचुएशन खड़ी कर दिया है कि पुनीत सुपरस्टार को यही काम करना पड़ेगा। वो नालियों में नहाता है, वो गोबर खाता है, वो कचड़ों में लेटता है, पता है क्यों? ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो ये लोग रोड पे सो रहे हैं, जिनका घर नहीं है, जो हाईवे के नीचे रहते हैं, उनका पेट भर सके। अबे एक भी क्रिएटर का नाम बता देना मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब लोगों की मदद करता हो। कम से कम पुनीत सुपरस्टार जो कमा रहा है उसका 90% गरीब लोगों में बांट तो रहा है। उस काम को आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वो बस तुम्हारे सामने दिखा रहा है कि वो गंदा पानी पी रहा है, वो ये दिखा रहा है कि वो बर्गर खा रहा है, तुम लोग उसको हेट कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो। उसकी माँ बीमार रहती है घर पर, उसके घर की जाके सिचुएशन देखना। उस लड़के के पास अब से 5 साल पहले खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था घर के अंदर। उसने वो गरीबी देखी है, बस आप लोग को हंसा सके और
आप लोग के कारण व्यूज आए, डील्स आए, इसलिए वो बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई भी सबूत लाके दिखा देना मेरे को कि पुनीत सुपरस्टार ने गंदा पानी पिया है, कुछ खाया है। वो बस एक्ट करता है कैमरे के आगे, अच्छे से देखना, आज तक कुछ भी अंदर नहीं गया होगा, वो थूक देता है। क्या गलत क्या गरीब लोगों के साथ। अबे कम से कम इस बंदे को तुम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसको गाली तो मत दो। थारा भाई जोगिंदर खड़ा है पुनीत सुपरस्टार के साथ। इसके बाद प्रदीप एकदम ही इरिटेट हो जाता हूँ मैं इन लोगों को अपने बकचोदी देख इंस्टाग्राम के। पर एक स्टोरी पोस्ट करते हैं, आप देखिए। ओए जोगिंदर, अगर इतना बड़ा मर्द है ना तो सीधा मेरा नाम ले, तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। और सुन, जैसे मैंने पुनीत के चाटे मारे हैं वैसे तेरे भी चाटे लगेंगे। लास्ट मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ। तुम सारे यूथ को खराब करने लग रहे हो हैं। आज तक हमारे देश के लिए करा क्या तुमने, और अपने आप को स्टार बताते हो। लास्ट चांस दे रहा हूँ, माफी की वीडियो डाल दियो, नहीं तो बख्शुआ नहीं जो तू मेरा इनडायरेक्टली नाम लेके वीडियो बना रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। टॉप 25 स्ट्रीमर्स के लिस्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स, जो कि अमेरिकन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडिया कंपनी से है फॉर कोई है? यूथ कल्चर, उन्होंने टॉप 25 स्ट्रीमर्स इन द वर्ल्ड 2024 इंडिया का का कोई लिस्ट है? निकाल दिया है। सबसे पहले नंबर पर कौन है? आइसो स्पीड, इसके बाद है काई सेनट, इसके बाद है एडिन रॉस, इसके बाद ड्यूक डेनिस, इसके बाद 5 नंबर पर है हसन अबी, एंड बाकी के लिस्ट आप देख सकते हो। लिस्ट में बता दूं कोई भी इंडियन नहीं है। जेसन प्लेक, एजेंट, डीजे ब्रूस, कैच, आयरन माउस, आई एम जोंते, अमरान, लड़वे, क्यूटी सिंड्रेला, स्टेपर, रोनाल्डो, जिंक्सी, क्या नेम, प्लोल, वेलकायरे, निंजा, प्यूडीपाई स्टिल स्ट्रीम्स। मैं प्यूडीपाई 25वें पे है, इंडिया से एक आदमी नहीं। क्या है भाई, नहीं है। प्यूडीपाई भी है, 25 नंबर पर है वो। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। 24 आवर प्यूडीपाई स्ट्रीम है, चल रहा है क्या अभी? एक भी इंडियन स्ट्रीमर नहीं यार। इतना दुख, दर्द, पीड़ा कैरी तो होता कम से कम। इंडिया में कभी नहीं शुरू होगा लगता है स्ट्रीमिंग कल्चर। क्या देखा जाए? नियॉन मैन ने कुछ अलग डाला है क्या आज? नियॉन मैन, दैट वाज शॉकिंग। ओके, ये तो हुआ ही है, ये तो देख ही लिए हैं, ये भी देख लिए हैं। अच्छा, ये वर्सेस पुष्पा, आशीष बादशाह, ये कुछ अलग है और कुछ नहीं। ये क्या हो गया समय की शक्ल को? If E4 and Samay gives free food and drinks to everyone. Always plays E4, free video and free drinks from Samay रहना। अच्छा, E4 अगर खेलता समय, अच्छा उस मूव पे समय की शक्ल को क्या कर दिया इन्होंने? तन्मय व्हाट रोडीज रिएक्शन, चलो आ जाओ देखते हैं। मोहब्बत कर तूने लेकिन मोहब्बत रास आए। अरे मत का बैन, विशाल वापस चला जाएगा। हैबिटेट में सबको दिया है यार, क्रेजी। रघु सर, जिंदगी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। रोडीज ऑडिशन नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ पे फाइनली कुल्लू तो रोडीज में नहीं टिकता भाई। अरे सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा मैंने किसी चीज के सपना नहीं देखा था जितना रोडीज ऑडिशन में देखा था। But your vibe is more like Splitsvilla. तो बड़े हो गए हुआ ना। I've always wondered why people would want to come to a Roadies audition when I was taking it. I am from generation of Devarshi bhai, so. मैं अगर किसी आदमी से मैं पेन मांगूंगा तो आदमी भी अगर 2 साल के बाद मिलूंगा तो मेरे को याद रखेगा इसने मेरे से पेन मांगा। He is legend, bro. He's the ultimate legend. We reacted to one of Devarshi's clips, you know, one of the episodes. Then he messaged me on Instagram saying, really appreciate that even today. Remember, I said कि नहीं भाई, आपने मुझसे पेन मांग किया था। We are live on members only, and of course the first question that somebody has asked is, ये रघु है या राजीव?
Raghu Yo, यार. welcome to another very, very special episode. It's special for a bunch of reasons. Let's begin. We have Banker OP in the house, Writer OP in the house, Prisoner OP in the house, Manager OP in the house. Making his return to the reaction episode is Shohar OP, aka Vishal Dehama. Vishal, welcome back. As soon as KL Rahul gets injured, Vishal Dehama decides to return back into the fold. And of course, 10 years from that epic day of the AIB roast, the one, the only, the man, the myth, the legend, Raghu Ram returns to a platform with Let's me and go. Rohan, proving Raghu. once again that any platform where रघु आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहा है पॉडकास्ट में, समय के इसमें, इस अभी तन्मय भाई के साथ मीम रिव्यू, बहुत ज्यादा कुछ वापस ही इज मेकिंग अ रिटर्न और कमबैक और समथिंग. क्या Indians need to humiliate themselves, Raghu will be there. Raghu, welcome to the show. How are you doing, brother? Thanks, man. It's been 10 मूवी आ years. रही है, Since साउथ that? मूवी आ रही है. Been 10 years, Oh, yeah. Close to 10 years. FIR में हुई है. Must have been that long because I must have forgotten the trauma of what happened next. Rohan Joshi and we, both of Yes. us were thing together. We went together. I still have the selfie that we took over there. What is the story, Rohan? So we go, okay, for interrogation to the police station. And before we enter the police station, again, the cop goes outside for 2 seconds. Raghu looks at me and he's like, "मेरे को selfie लेना है यहाँ पे." And at one point, again, the cop goes out for 2 seconds. Raghu picks up his phone, gets a selfie of both of us smiling and puts it down. Cops also took photos with us later on. Yeah. Then the cops also took photos. But of course, Raghu, recently everybody saw both of us on the last India's Got Laden episode, and you of course crushed it. Peak Raghu was back. सारे memes हम देख रहे हैं. How are you feeling after that? What are people telling you actually? Yeah, my Instagram is blowing up, and my thing is, मेरे को बहुत time बाद ना, I feel I got to unleash myself. मुझे ऐसा लगा कि I wasn't holding back. This was a place where I felt safe. I'm not closing my eyes. Band ke lord. Like I felt in AIB. At the roast. I had fun. A lot of you must be wondering where Raghu is right now, looking at where his camera is. I can tell you guys he's on the mountains. Anyway, let's get into the episode. I want to ask, is that Roadies, that show? This is Roadies, yeah. I haven't seen. No. It's your choice. It's her choice. Are you a virgin? Yes, I'm virgin. You are. हाँ जी. लिखा ही नहीं, सेक्स लिखा ही नहीं. इसने सेक्स लिखा ही नहीं. आपको कभी करना ही नहीं करना. मतलब तेरे अकॉर्डिंगली सेक्स बुरा है. It is not love. ये क्या है? Lust. तो तू कैसे पैदा हुआ भाई? सतयुग में कभी भी बच्चे जब पैदा होते हैं ना, फिजिकल उससे नहीं होते. यहाँ पे फिर एनर्जी एक्सचेंज होती है, उसी से बच्चा पैदा होता है. I want to understand how he masturbates then. He's a sapiosexual. अरे पर वो मुट्ठी भी नहीं मारता. Haven't you ever heard of the concept of head banging? I feel sorry for the people who give him head massages. Raghu, your relationship with Ranvijay on Roadies, every episode or every new city that you would go for audition, तुम लोग का वो होता था कि इस शहर में क्या चुतियाब होने वाला है अभी, like because you guys would keep meeting hilarious people. Like. Yeah, man. Actually, I was on top of things for the most part, and उनकी brief सही थी कि get people that you think will be cast and get people that you think won't be cast but would be great fun to interview. अब इसमें क्या होता था, लोग भड़कते थे because they used to think that Roadies is about aggression. मैं aggressive हो जाता हूँ. They used to be obnoxious with the moderator. जिन पे गुस्सा आता था ना moderators, they used to send them up. वहाँ लिखा होता था फॉर्म में ये पिटने आया है करके. कमेंट होता था ये पिटने आया. हम लोग there were reasons why we used abusive language. But when we put it on air ना, I used to beep all the abusive words. I used to mute them also. Somebody in MTV decided it'll be a good idea. He uploaded a short saying 1,000 galis in 1 minute. Touch of all my abuses. अब that उस पे पहला केस पड़ा मेरा. If you did not get angry, तो edit पे feedback आया होगा कि इसमें मजा नहीं आया यार. किसी को. The head of MTV at that time, business head, told me कि यार reaction ऐसा आ रहा है कि it's not rude, it's huggy, it's rude is not huggies. You can't keep hugging people, bro. प्रोडक्शन वाले के रात में आता हुआ, अरे वो ऑडियो ढंग से सिंक नहीं हुआ. Ask Raghu to send a voice note saying भोस. एक काम कर सकते क्या, मादर के बाद बीप डाल दे. लाइट जाने के बायस भी हमारे भाई साहब धूम पंखे के रोडीज तो नहीं है. अगर ड्रोन उन्होंने चला के छोड़ा हुआ है. He's द्रोणाचार्य. और पता है इसका पंखा लग रहा है तो अलार्म भी यही है.
Raghu, you and your brother Rajiv Lakshman are confusing to me at a biological level because you both look like testicles, but you're both assholes. You know, Baba, honestly, जब रघु और राजीव पैदा हुए ना, दुनिया में पहली बार एक चूत से 2 चूतियां निकली, जिन्होंने एक चूतिया चैनल पे एक चूतिया शो बनाया, जहां हजारों चूतियों ने ऑडिशन किया, जिनमें से 20 चूतियों ने चूतिया कंट्रीज में जाके अपना चूतिया कटाया और 100 करोड़ चूतिया ऑडियंस को चूतिया बनाया. रघु, what I'm trying to say is, और इस पे 2 चूतियों ने जोक मारा. और no, Raghu, seriously, what I'm trying to say is, तू इतना गाली क्यों देता है यार? रघु, अच्छा सच्चे दिल से एक बात बता, हाँ? तू हिलाता है या अपने लंड पे चिल्लाता है? निकाल पहुंचने के बेटा तू चिक्स करेगा? छूट ना! खड़ा नहीं हो जा, तू रोटी खाएगा? Rohan, I'm getting full nice nostalgia flashback. I've seen this movie, dude. It's great. That's my ex-wife. Oh yeah, that is. Oh, that's crazy. Oh, she was cheering the loudest, bro. I have had requests to be yelled at. Like your OnlyFans must be amazing. Oh, you people were ready to pay you to please come home abuse me. वो तो अभी भी बोलते हैं. हाँ, of course. चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला. चाचा ने चाची की When Chacha becomes Chichi. The Govinda reference. Chichi. Listen, if you want Raghu to scream at you, ask us. We are friends, or we can just ask him directly. Shout! I don't know. Shridhar No, bro. Even that they were like Arjun Kapoor was so obnoxious. Maybe I think in the roast, the worst thing was Arjun Kapoor. He was not चूतिया, like he wasn't चूतिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो चूतिया उसमें भी रोस्ट में भी चूतिया ही था. India's #1 corporate comedian. He's massive on LinkedIn. What's a corporate comedian? Corporate comedian is someone who doesn't make laugh. He gets appraisal. You perform for corporates, or your jokes are corporate jokes? Jokes are understood only by people who have 9-to-5 jobs. 9-to-5 jokes. The corporate guys make more money, to be honest. Corporate ज़्यादा पैसा देके बुलाते हैं यार than college shows. बियर कहाँ चला गया बेचारे का? That kingfisher ran away faster than Vijay Mallya. Nirmala Sitharaman with my salary. Nice. Nice. गांडू. अपने बारे में कुछ बताओ. तमन्ना. मेरा नाम तमन्ना. बेटा क्या नौकरी का इंटरव्यू क्या है? अच्छा, रोटी के बारे में बोलो. नहीं, अपने बारे में बोलो भाई. ये रोल करके बात कर सही था. रोल करके तमन्ना. मेरे को याद है. अपने बारे में मेरा नाम तमन्ना. अपने बारे में तमन्ना ही है. देखा? अरे तमन्ना. हाँ? You're a girl. अब क्या बताऊँ मैं? नहीं बताते जो लिखा है? नहीं. हमने पढ़ लिया. कौन पढ़ चुका? मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ. You love your freedom ना? मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ. जो भी आप बताना चाहे बताइए. अब तो इतने बिल्डअप के बाद I can't wait to hear कि अभी क्या आने वाला है. तमन्ना. मेरा नाम तमन्ना है. Guys, just one question. इस लड़की का नाम क्या है? After the success of I am Groot and Hodor, we have Tamanna. मेरा नाम तमन्ना है. This girl during sex says, "I'll say my name." But by the way, Tamanna was actually selected in Roadies. वो गई थी उसमें. मेरा नाम तमन्ना. अगर 8 बिलियन पीपल जिंदा है अभी, तो इसका मतलब 16 बिलियन लोगों ने सेक्स किए होंगे. बराबर यार. पर मेरे को एक बात बता, जब लोग ही 8 बिलियन है तो 16 बिलियन कहाँ से आए? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं विद टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट ये तो कम हो गई ना. टाइम पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि 8 बिलियन लोग जिंदा है, तो इसका मतलब 16 बिलियन लोगों ने सेक्स किए होंगे. 16 बिलियन लोग तो थे ही नहीं कभी. 8 बिलियन लोग कहाँ गायब हुए बाकी? और रियलिटी शो साइकिल में और भी कुछ पता है. तमन्ना का एक्चुअली एक लीक भी हुआ कुछ तो वीडियो. तुमको पता है ये बात? फेक था वो अलग बात है, पर उस समय बहुत ऐसे न्यूज़ पे आ रहा था. Bro was looking for a problem for his solution, bro. किसने बोला है लीगल को गांजा करो?
वैसे रघु, you and Rajiv, how many people took to conceive the two of you? We are monozygotic twins. No, monozygotic matlab we were supposed to be one person. Acha. So that is zygotic. The two eggs are fertilized at the same time. There are two people, but this is one. Rajiv and I are actually supposed to be one person. Acha. We get that sense sometimes while watching. At least one is psychotic. No conozco banderas del mundo. Gay. I think it's a country's flag, yaar. I've never seen. एक सेकंड, क्या हुआ क्या? Gay. ये कौन सा कंट्री का फ्लैग है? I think it's a country's flag, yaar. I've never seen it. What the fuck? Seychelles. किसने बोला this is LGTV? बाप रे. Flag of gay shells. You are asking Raghu what is a corporate comedian, no? Yes. जितने लोगों ने सीधा भाई को बुक किया होगा भी कॉर्पोरेट, उसके लिए अभी सब मेल लिख रहे हैं ड्यू टू We would be resigning our position. I hope some of the decisions won't affect our appraisal. नो सेंट. और बेटा एडमिशन हो गया? हाँ, एडमिशन हो गया. कौन से कॉलेज में? मेरा एमिटी में हुआ है. एमिटी में? वो तो बड़ी लंड यूनिवर्सिटी है. Is there a university called Lund? Yes. Yeah. There's also a Lauda Airlines. There is a Lauda Airlines also. Yeah. This is where campus placements happen for roadies. मजे आ रहे. मजे तो देखो जी, मजे तब होता है जब आदमी के जेब में पैसा हो, और भाई कहने वाला कोई नहीं हो. फोन का तेरा जेब में दे इधर. पकड़ा गया. यो है जी. ये फोन मैंने खरीदा अभी इतने साल काम करने के बाद. S3. एक और फोन होने के बावजूद. जेब में पैसे हो तो कैसी बातें कर रहा है? इससे बढ़िया फोन नहीं है आज मार्केट में. भाई ये देखो जी, इसके आईब्रोज देख देसी आदमी के. I'll talk to you in English because I know you can understand me. You don't need to call out his eyebrows, brother. किसी ने बोला है, bro, Raghu really hates hair, huh? जो मैं चिल्ला रहा हूँ ना फोन के बारे में कि ये इतना सही फोन है, इतने टाइम के बाद मैंने खरीदा. That was a sponsor of that and I said to him on the phone also, yeah, Samsung Galaxy phone है, तो बढ़िया फोन नहीं है मार्केट में. अबे गुस्से में स्पॉन्सर देख कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ. अरे सर, क्रेजी भाई, क्रेजी. ये ट्रिविया नहीं पता था मेरे को. नाइस ट्रिविया. I like this one. Nice one. ये क्या ट्रिविया दे दिया सर? Too good. When a woman is pregnant with 2 babies, they are called twins. When a woman is pregnant with 3 babies, they are called blank. 3 babies. Let's. Triceps. Triceps. मैं और राजू उस हिसाब से बाइसेप हुए. Yeah, correct. And when you have 4, they are called quads. Yes. If there are 5, they are deadlifts. सीमेंट जैसे रिलीज होने वाला है. सीमेंट रिलीज होना तो मेल पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, और मेल पेनिस को विड्रॉ कर लेगा और सीमेंट को रिलीज करेगा कहाँ? This is a classroom in Lund University. Yeah. Nice. Making it sound like a bank transaction. Yes. पहले विड्रॉ करेगा, फिर पासबुक अपडेट करेगा. इस एज के लड़कों को ये सिखाने की जरूरत क्या पड़ रही है उस आदमी को? अरे नहीं, वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में वो मेथड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. तो फर्स्ट इज अ प्रोटेक्शन मेथड, वन इज अ कैलेंडर मेथड. एक मिनट, कैलेंडर मेथड क्या है? साइकिल. You just dodge the bullet. Right? You have to कैलेंडर साइकिल में तुमको पीरियड का वो साइकिल गेस करके करना पड़ेगा कि अच्छा 2 दिन में होने वाला इस टाइम पे सही है, इस टाइम पे कर सकता है. Now Tanmay was going to go fuck his calendar. Calendar method, this is corporate jargons, is you have sex when salary comes. Yeah, there's something called soaking, which is even, if you think that you know something more ridiculous than calendar method, it's called soaking. It's okay as long as you don't put any effort into it. So penis is deposited into the bed, and then you have 2 people shaking the bed sheet so that the act can happen, but you're not doing it. So it's marriage basically. You are on an Indian train.
किसी के गजरे ने किसी के गजरे ने बहती सुबह ने माँ बिस्किट दे माँ. This is He's a Labrador. भैरव सिंह कॉलर संभालो भैरव सिंह. Now you pissed me off. Intensity! और ये बंदर बन के दिखाएगा. Passion! I have that passion, I have that intensity. I'm sure I definitely. निहाल. You see angry gorilla? You see it? Yeah. Slap yourself. Slap yourself. Better. Raghu is like अगले से राजीव लाना पड़ेगा. When this guy came ना तभी select निहाल ये क्या करता था अपना निखिल. And उसके बारे में बता. मैं निहाल के बारे में बता रहा था. निहाल got selected. He was in the finalist था. शांभवी के साथ इसका चक्कर चलता था उसमें. और पर फिर शांभवी को ही निकाल दिया था इसने. एंड आशुतोष जीत गया था लास्ट फिनाले के दिन. When this guy came ना तभी select करता था अपना निखिल. And he said, Raghu, I'm not going to be this kind of person and मैं stress वैस नहीं डाल सकता. I'm a very approachable guy. That's my brand. person and मैं stress वैस नहीं डाल सकता. I'm a very approachable guy. That's my brand. Cut to intensity. By the end of day one वो ऐसा हो गया था खूंखार सा. You know, you talk to people like this, it really fucks with your brain. You know, it warps your sense of reality. And this is the room you're living in now. But उसमें भी I thought this was not excusable. I spoke to him. आप हाथ नहीं लगा सकते किसी को यार. Nikhil going from, I am very approachable to this reminds me of Sridhar saying I am corporate comedian. Cut to calendar sex. वैसे स्वागत तो हम करेंगे आपका, क्योंकि हम सोनी चैनल पर पिछले 18 साल से आ रहे हैं. तुम तो आज आ गए हो. नहीं ये तो बात सही. एक बात कहूं? जी सर. कपिल. बहनचोद. क्या बात है सर? I have an alternative name for CID. Comedy Nights with Katil. Sorry. Go back to the calendar sex. किसी ने चैट में पूछा इसमें से ओरिजिनल कौन सा है? मेरे को नहीं पता. They're both so good. ऊपर वाला किंग का गाना है, नीचे वाला लिंग का गाना है. Correct. No one can say it's a copy. पार्टीशन में बाल उधर चले गए थे. Yeah, right now Pakistan has also copied India's Got Latent. They have a show called Talent Got Pakistan. And in their defense, that's how Urdu is written. Can I tell you a story about this guy? Yeah. He has a show called Living on the Edge. He rebranded it, calling it Pakistan Roadies. At the end of the season 4, Facebook पे या ऑर्कुट पे एक वो आ गया था कि एक शो ऐसा शो जो लोग कहते हैं कि यहाँ बनना चाहिए पाकिस्तान रोडीज. Okay, then I realized that man, these guys are co-opting the fucking brand. I went to my boss's office and I said, fucking sue the pants off these guys, man. He said, we can't. I said, why not? So we haven't copyrighted roadies. 4 सीजन हो गए. मैं बोला व्हाट. आई टुक इट वेरी पर्सनली बिकॉज मेरा काम था वो. एंड तो मैंने बोला फक यू गाइस, मैं जाके कॉपीराइट कर रहा हूँ. आई वांट टू सू दिस गाय. सो आई वेंट एंड मैंने धमकी दी. तो 2 दिन में इन्होंने कॉपीराइट कर दिया. इमेजिन इफ दे हैडंट, I would have fucking copyrighted Rudy's. I would have never spoken to any of you guys. मेरे को जरूरत ही नहीं. इसका नाम, पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद. सलमान शेख. आबिद नाम है ना, शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद. तो शेख कौन है? मतलब सलमान आबिद. क्या बोल रहे हैं यार, तू क्या पागल हो गए यार? सलमान आबिद लिखा है, फिर बोल रहा है सलमान शेख. शेख नहीं लगाया, सलमान आबिद. सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है. क्या नाम है? शेख सलमान आबिद. अब शेख शुरू में आ गया. शेख सलमान आबिद पूरा नाम है. आराम से रिलैक्स हो जा. बैठ जा. बैठ क्यों जा, खड़ा रहे. Divided by politics, united by तमन्ना. This guy, जुपेंद्र भोगी. चूतिए. आपने करना ही है, ये तीनों अंडे आपने छिलके के साथ खा लेने. छिलके के साथ? 1 मिनट हो चुका है. मुंह खोलो. क्या याद करेंगे आप? ये ले. थैंक यू. खोले से.
नाम सही लिखा है मैंने आपका? वजीहा गोल। आपका क्या नाम है? कुंजुल हया। सिलेक्शन हो गया, आपके अंडर रख दें। आपको क्या लगता है ये ड्राइव थ्रू है, आएंगी, ये चैलेंज करेंगी और सिलेक्शन हो जाएगी? खड़ी हो जाए यहाँ पे। जी, किसकी सिलेक्शन होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कुंजुल। कुंजुल जी, कुंजुल किसका नाम है? मरियम। मरियम, सिलेक्शन हो गया। Wow! To be fair, that is also how Pakistan chooses prime minister. And cricket captains. Did the winners of roadies like ever keep in touch types? Like I remember Ashutosh had won the first or second, third season, I think. First season was not a competition, so there was no winner. You just had to finish the journey. That's it. Then second में आयुष्मान. Second was Ayushman, yeah. So technically, the first winner of roadies is Ayushman. Can I tell you a story about that? About Ayushman? About Ayushman? Yes. Yeah, yeah. One of the tasks we did on roadies 2 was sperm donation. Oh. And imagine that was his first film, Vicky Donor. Yeah, correct. Crazy. Sorry, I need to go back. You're telling me there are 10 like roadie sperm just running wild in the world somewhere. Because of Supervised. कोई बच्चा है जो पानी का रंग देख के रोने लग जाता है भाई. शब्दकोश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? What does अंडकोश mean? Testicle. Testicles को हिंदी में हम लोग आंड भी बोलते हैं, but that's because it egg shaped. अंडकोश, I don't know if that's a word. Chamber of the Ants. Chamber of Ants. The unwritten. Chamber of Ants. Oh, yeah. Unwritten Harry Potter book. Yes. Scrotal sac. Scrotal sac is if Sridhar had to put it on LinkedIn. Why he got fired? Scrotal sac. कमर से हाथ रखा भाड़वे। हाँ ना, मत पकड़ना क्यों है घर में? अरे हिल मत गिर गया। Oh shit. I love with boys it's like there's almost near fatal accident and the reaction is अबे गिर गया, अरे बैचन गिर गया. These are those roadie sperms coming together. उसके शब्दकोश पिचक गए. Man, I'm telling you, robbing that bank. यार रघु के ऊपर कैसे आ गया मैं? अभी तक तो रघु उधर था. सॉरी श्रीधर भाई यार, आपका जगह मेरे को लेना पड़ेगा थोड़ा सा. Was the best decision I've ever made. You're so crazy, bro. Robbing that bank was the best decision I've ever made. You're so crazy, bro. But what the flip are you gonna do with all that darn money? Money? That was Ayushman that he was. Any employee works on the weekend. Narayan Murthy. Narayan Murthy blushing is so cute, man. Too good. Every year your school counts all the Patels at GRAT. Bro, what the fuck? It's a lot of कितना Patels, bro. पटेल? करते हैं अपन अरे कुछ दे पटेलों पटेलो. के लिए. Too good. Patel. Trump counting green cards to cancel. Yes, Patel. Basically, Punjab and Haryana burning crop and Delhi in the background. Oh, nice. Nice. Raghu copywriting roadies before MTV. You watching mom and dad argue. Wow. Sridhar, after every sentence of Sridhar, we regret to inform you. We are stopping comedy shows in our company for company. Only corporate Sridhar can perform for is ITC because they cigarette to inform you. Sridhar, are you proud of me? Very, very. 3, 2, 1.
बस गांजा भांग भोसड़ा कुछ की चुनिया झावन जाटू I'll say it. Raghu Rajiv. Raghu Rajiv. They should be called relationship and love ship. I have always had a question, Raghu. There was this famous clip of you on Indian Idol. Just give me a minute, okay? I need to do this before I sing it. Yeah? Some people do alap and all. मेरे को. You are already wasting 30 seconds. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो. अच्छा, लेकिन आपने जो स्ट्रेचिंग की उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रेचिंग आपकी सुर तक नहीं पहुंची. आपका कहने का मतलब है कि आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते. तो आप ये बात तमीज से भी बोल सकते हैं. Because this happened when we finished Roadies 2. I finished that with Ayushmann in Wagah border, Amritsar. वहाँ से I was coming to Bombay via Delhi. तो मैं दिल्ली तक ट्रेन में आए हम और रोड से, और उस टाइम पहला वो शूट हो रहा था इंडियन आइडल का ऑडिशन. एंड my friends, I was working in Meritech before that, so they were my friends and all that. My girlfriend at that time was working there also. तो मैं गया उनसे मिलने. वहां पर लोगों ने बोला, ओए रघु तू आ गया, तू एक काम कर यार, जाके लड़ ले इनसे. मैंने बोला क्यों, मैं क्यों लड़ूंगा यार, मेरे को नहीं लड़ना, मैं थका हुआ हूँ. बट उनका नहीं यार, ये लोग ना बहुत रूडली सबसे बात कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तू जाके लड़. मैं बोला मैं नहीं करूंगा. Then my girl said, baby do it. मैंने कहा so I went in. Baby do it. And Baba be like, let's go. अब तो करना ही पड़ेगा. Typical boyfriend. Girl said, baby do it. So I went in to fight. They didn't know. And I was sitting. उनको नहीं पता था. उनको नहीं पता था. You can say I was a plant to generate reactions from them, but their reactions were real. So I went in to pick a fight. That's why I went and started doing warm-ups and. बरसों बाद, did you ever meet them? Yes. Oh, अच्छा. Then they knew. I have worked with Tismar Khan with. Correct. With Farah. Oh yeah. Sul Nigam has also. Oh, correct. Crazy. I think this was the longest guest episode we've ever done. We're at 90 minutes. Yeah. I don't know if the Telugu film has been announced, Raghu, but in case you want to talk. It has, yeah. It's called Mechanic Rocky, and it's coming out on the 22nd. 22nd of now, November. Now in 4 days. Oh, nice. Oh, crazy. Okay. That's why I'm here in. Arey, Sridhar, say something, yaar. Ingalavada. I saw that part. Elro Rocky. Mechanic Rocky. Na theater gogi nodi. Miss Madbedi. Oh, nice. But crazy, what are you doing in the film? I'm the heroine. Okay. I'm the villain, bitch. Obviously. Nice. Oh, really? Okay, cool. Okay. Nice. Excited to watch you. Thank you so much for coming, Raghu. And I will see you next decade, I guess. Exactly 10 years from now. Raghu sir, I loved your acting in Jhuta Hi Sahi. It's very underrated, but it was very nice. Jhuta Hi Sahi. Oh, Jhuta Sahi was good. बहुत मस्त फिल्म थी और आपकी एक्टिंग बहुत अच्छा किया था. That was Rajiv. See you next time. Bye. मजेदार था. Tismarka super underrated. Tismarka underrated? Tismarka was a fucking terrible movie. Just underrated. For real, वो देख पागल हो गया. झाड़ू मूवी. Tismarka अच्छा लगता है इनको. पागल हो गया है चुत. Tismarka अच्छी थी. देखो तुम लोग देखो एंजॉय करो. Once upon in La La Land. सुनो हंसले Tismarka. वही लड़की को देख भी लिया भाई, फिर भी बार देखो हर एक टाइम लगाते. नहीं इंटरेस्टेड हूँ यार मैं. और क्या देख सकते हैं अभी. Heartbeats trailer. Heartbeats trailer. DVD MB में है आधा घंटा. ये क्या है? टीवी सीरीज. इस साल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ देयर विल बी अ स्कॉलरशिप ऑफ 20 lakhs. उस 20 लाख की अहमियत हमसे ज्यादा शायद ही किसी को थी.
बैच के टॉपर बने रहना, 20 लाख का कर्जा चुकाना, छोटे से गांव की नर्स का बेटा टॉप क्लास सज्जन बन सकता है। बस यही था हमारा लक्ष्य। आगे तेरी हीरोइन। व्हाट्सअप हो जाए। और ये है वो जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाने की पूरी क्षमता रखती थी, सांझ अरोड़ा। जे एक दूसरे पे क्रश है, ये डेट करने में क्या प्रॉब्लम है? बस एक हफ्ते का क्रश थी हमारे। अबे क्रश है क्रॉसिंग थोड़ी जो 2 साल में एक्सपायर हो जाओगी। ना मुझको पता हम दोस्त हैं। क्यों नहीं है? Accidental date was actually a lot of fun. क्या प्रिस्क्राइब किया था? क्या दवाई दी थी? What's wrong with you? हमारे प्रोफेशन में किसी भी गलती की कोई माफी नहीं है। Do not test my patience. All of you are on double shifts. इस बार का भी स्टाइपेंड जाएगा लोन की EMI में। भाई को कमी महसूस होने देंगे क्या? चंदा देने वाली बात मत करा करो हमारे साथ। भरोसा था मुझे कि तुम ना एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, but guess I was wrong. अगर हम भी तुम्हारी तरह नेपो किड होते ना तो हम भी यही बातें करते। यार ओवर टाइम करते हैं, मेहनत करते हैं। Enough. Fake prescriptions बेचते हैं। ये डॉक्टर्स हैं या फ्रॉडस्टर्स? सस्पेंशन तो पक्का है। हमारा करियर खत्म हो जाएगा सर। Pack your bags and go home. नहीं चलेगा, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कर रही है वो? 25 लाख का लोन लेके यहाँ बैठे हैं हम। करियर मेरा भी था अक्षय। तुम्हारे और हमारे करियर की तुलना नहीं हो सकती। मैम 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 मैम। Intern who deserved my letter of recommendation is जब तक गिर के टूटेंगे नहीं ना, तब तक छलांग लगाते रहेंगे और एक दिन उड़ान भरेंगे जरूर। देखिए हमारा नया शो हार्ट बीट्स ओनली ऑन Amazon। ग्रेज एनाटॉमी का चीप कॉपी। ग्रेज एनाटॉमी कैसे हो गया? ग्रेज एनाटॉमी में तो अच्छा रहता है डॉक्टर, इसमें तो झाटू डॉक्टर है ना ये तो। बट व्हाटएवर, डॉक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। नॉट इनटू इट। स्क्विड गेम सीजन 2 ट्रेलर ये देखते हैं ना। हिंदी क्यों भाई, इंग्लिश दिखाओ ना। 네가 그 안에서 총질을 하든 밖에서 야 अच्छा ट्रेलर हिंदी में निकालोगे पर इंग्लिश में नहीं है? 네가 그 안에서 총질을 하든 밖에서 야바이 짓을 하든 달라지는 건 Fuck is this dude? एक हिंदी और ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों सेम ही है भोसड़ी है तो क्या कर रहे हो यार? नेटफ्लिक्स पर कौन सा देखो? 네가 그 안에서 총질을 하든 밖에서 야바이 짓을 하든 달라지는 건 없어. 456번 나한테 뭘 원하지? 다시 게임을 하게 해줘. 저희는 여러분을 해치려는 게 아닙니다. 여러분들에게 기회를 드리는 겁니다. 엄마, 급한만 더 하면 다 갖고도 남아. 야, 그럼 여기 왜 다시 들어왔냐? 난 그 게임을 멈추려는 거야. 아직도 모르겠나? 세상에 맡기지 않는 한 게임은 끝나지 않아. 이 게임을 만든 놈들. 그 놈들과 싸워야 합니다. (456번) 게임에 돌아온 걸 환영하네. क्रेजी भाई।
और क्या देख सकते हैं? नीतीश राज अभी पॉलिटिक्स का देखेंगे। नहीं, जोक ऑफ में क्या कुछ तो नया नहीं आया, लिख तो लिया था लास्ट वीडियो जो उसकी आई थी। दी टाइम अभी है, 15 मिनट है बिग बॉस में तो। लिविंग ऑन द एज, क्या है लिविंग ऑन द एज? लिविंग ऑन द एज, अच्छा ये तो सब तो देख ही रखा है इतनी बार इधर उधर। एक्चुअली फनी सीन्स तो देख ही रखे हैं, इसमें कभी हुआ था ये सीजन, अच्छा 4 सीजन में भी कभी, और आज 15 मिनट में थोड़ी देख पाएंगे सब। डिज्नी मुफासा एक राजा की कहानी, ये क्या है? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे रियासत की रोशनी नहीं, तन्हाइयों की विरासत मिली, लेकिन उसकी रगों में बहता था उसका जुनून, और उसी जुनून से उसने जमीन से उठकर आसमान को छुआ। जमीन पर तो कई बादशाह हुकूमत करते आए हैं, और उसने राज किया सभी के दिलों पर। हालात की आंधियों से उठा एक सच्चा राजा। काफी मिलती जुलती है ना ये कहानी, पर ये कहानी है मुफासा की। सही है, मजा आएगा मुफासा देखना। वक्त है दिसंबर 20 दिसंबर को आएगा। ये Okay, but find the move. You know what? If Gukesh finds E4, every one of you, unlimited food and drinks from me today. Every one of you. Can we keep the party popper ready, please? We need E4, man. Oh my God, bhai, Samay bhai is like on fire. E4. But it's not a winning move, huh? It's not but a it's winning a great move. It's a great move. It's one of the. Seizes It gives the you a lot of opportunity. advantage. Right. But I want to also check in with Sagar's line of pawn takes pawn. I was just checking the menu, Tanya. Oh, sorry. Man. Let's do it. Priorities, you know. No, let's go. Yeah. What was? So no, this is really interesting. And again, I've switched off the engine now. We've seen the problem with what happens if you play the move knight e6, right? But Sagar, you had also suggested pawn takes pawn. Yeah. And how is this different is what I'm trying to work out. You know what? This tournament, like, you know, we all have been commentating on Gukesh's games, and he has been so accurate before, but in these loses some money today. फिर वो clearly पढ़ाई तो नहीं कर रहा है अभी हर्षित. नहीं बिल्कुल नहीं. Graduation, it's just graduation ceremony. He doesn't have to give exams. No, it's fine. Then he should be watching. Come on, Gukesh. 1 hour, 12 minutes. Keep the time advantage. Find the movie 4 and keep the game complicated. Ding will blunder in time pressure. Yeah. Once E4 happens, Ding will be under tremendous pressure. But look at this scene, no? Both players logged in. Like, दोनों एकदम ऐसे बैठे हैं. They look at it. Ding shakes his head. Ding sees it. Look at him. Look at him. अरे भाई. Oh. Sagar, he has been doing this for a while. Hey, संग फोड़ना आ गया पार्टी पोपर. Let's go. Oh my God, मैं तो खा रहा हूँ भाई. Free food. Let's get it. खाओ भाई जो खाना है भाई. मैं कुछ खा के आया भाई. भाई खा के आओ. Right now, Gukesh has just pushed his pawn to E4. कह रहा मैं तो खा के आ रहा हूँ फ्री फूड. It's game on.
चलो भाई, अब आई थिंक हो गया टाइम, वी शुड गो टू द सेकंड चैनल, जिसके वो पता नहीं है, चैट में से किसी से पूछ लेना, वो लोग बता देंगे तुमको, वहां पे पहुंच जाओ एंड सी यू ओवर देयर।